Dear students, it's your second class of English, and in our previous class we read about the last sermon of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Today we are going to read about Shah Abdul Latif. Students, I am sure you would have heard or read about Shah Abdul Latif. It's not unfamiliar to you. आप लोगों ने यकीनन इनके बारे में पहले भी कहीं सुना या पढ़ा होगा। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस. God sent the prophet as a blessing to mankind. He won people's hearts by his kind nature and gentle ways. His noble example was followed by many of his followers in all ages, all over the world. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslims to the fold of Islam. अच्छा जनाब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और वो अल्लाह पाक की आखिरी रिवलेशन यानी कुरान पाक यानी आखिरी वही की किताब के साथ उतारे गए, और उनके बाद ऑब्वियसली कोई नबी आखिरत तक ना आएगा, ना ही कोई आसमानी सहीफ़ा मज़ीद भेजा जाएगा। लेकिन आपको पता है कि उस टाइम ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी का टाइम तो था नहीं, तो उस टाइम जो है जो मैसेज है वो पहुंचना फैलना आसान नहीं थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनके बहुत से चाहने वालों ने, उनके फॉलोअर्स ने, मुस्लिम बिलीवर्स ने अपनी सी पूरी कोशिश की कि इस्लाम को दूर दराज तक फैलाया जाए, और इस सिलसिले में हमारे सूफिया कराम ने बहुत अहम रोल प्ले किया। In every part of our country, there are shrines of such saints. In Lahore are the shrine of Data Ganj Bakhsh and Mia Mir Sahab. In Pakpatan lived and died Baba Farid. In Multan is a shrine of Ghaus Bahaul Haq. In Peshawar, in Quetta, and in countless other towns and cities, there are the tombs of these men of God. In Sindh are the tombs of two great saints, Shah Abdul Latif and Qalandar Lal Shehbaz. अच्छा जनाब, थ्रू आउट द कंट्री, हमारे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट है यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पे आपको बहुत सारे श्राइन्स मिलेंगे, बहुत सारे इन सूफिया कराम के मज़ार मिलेंगे। तो ये जो इसकी वजह यही है कि हमारे पूरे बड़े सग़ीर में यानी हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो फैला इन्हीं सूफिया कराम की काविशों की बदौलत था। द ग्रेट सेंट शाह अब्दुल लतीफ़, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1689 in a small village called Hala Haveli. The Gujmul Emperor Aurangzeb then ruled the country. Shah Abdul Latif's ancestors had migrated to Sindh during the days of Tamerlane. They had come from Herat. Sindh was then a center of Muslim culture, and Shah Abdul Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. But no one would have remembered their names or learned about them if many centuries later one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to Saint Lal Latif.
अच्छा जनाब, तो इनके जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के जो आबा अजदाद हैं वो हेरात से माइग्रेट करके यहाँ आए थे और उस वक्त सिंध जो है वो एक तालीम का बड़ा मरकज़ माना जाता था और उन्हें ये इतना अच्छा लगा, मुस्लिम कल्चर का एक मरकज़ था, तो उन्हें उनके आबा अजदाद को ये इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं पे आबाद होंगे। लेकिन काफ़ी सालों बाद, काफ़ी सदियों बाद, उनकी यानी काफ़ी नस्लों के बाद उनके यहाँ एक मीर सैयद हबीब शाह साहब के यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की विलादत हुई, जिसकी वजह से आज भी उस ख़ानदान को जाना जाता है। Shah Abdul Latif had a very sensitive mind. His heart was soon filled with the love of God. The beauty of nature arose his feelings strongly while he was only a boy. He started composing poetry. He was also keen on acquiring knowledge, and he grew up to be a scholar of Arabic and Persian. When he was 20, he married a noble and good lady. He showed great kindness to his wife and lived at home for many years. His heart, however, turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless in living a normal domestic life. अच्छा जनाब, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है वो शुरू ही से एक सेंसिटिव दिल रखते थे, एक हसास जहन के मालिक थे और शुरू ही से उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो घर कर गई और उन्होंने काफ़ी कम उम्र से ही पोइट्री जो है वो करना स्टार्ट कर दी थी और उस साथ साथ उन्होंने वो अपने टाइम में जो उलूम पढ़ाए जाते थे, ख़ास तौर पे अरबिक और पर्शियन के एक स्कॉलर भी वो बन गए। उन्होंने इल्म हासिल किया इन लैंग्वेजेस का और वो अरबिक और पर्शियन के स्कॉलर भी बन गए। और 20 साल की उम्र में उनकी एक शादी एक नोबल ख़ानदान से एक ख़ातून से हुई, लेकिन उनका दिल जो है वो इस नॉर्मल रूटीन लाइफ से में बिल्कुल भी नहीं लगता था। When his father died, Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. A mound of sand is called Beit in Sindhi due to the fact that he lived on the mount for the rest of his life. Shah Latif came to be known as the Saint of Beit. To this day, he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai or Shah Latif of the Mount. अच्छा जनाब, तो जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उन्होंने अपनी एक नॉर्मल जो ज़िंदगी थी उसको तर्क करके अपने घर के करीब मौजूद एक मिट्टी के टीले पे जाके रिहाइश इख्तियार कर ली और यही वजह है कि उन्हें भिटाई भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी के टीले को सिंधी में भिट कहते हैं और उसी की निस्बत से इनको भिटाई भी कहा जाता है। As days passed, Latif's love of God grew until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion. And spent most of his time in prayer and deep thinking. His spiritual power grew stronger with prayer and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. अच्छा जनाब, तो अब क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ इनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती रही और उन्हें इबादत में और इसी डिवोशन में अल्लाह पाक के लिए अपना मुकम्मल वक्त जो है वक्फ़ करने में ही सुकून मिलने लगा और इसी की बदौलत उनकी तरफ लोग जो है वो खिंचने लगे। Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day.
और यही वजह थी कि जो कोई उनके पास आता, उनसे मिलता, उनकी नरम खुई से, उनकी जेंटल वेज से इतना मुतासर हो जाता कि वो एक उनका मुतक़िद बन जाता और इस तरह दिन ब दिन उनके फॉलोअर्स की तादाद में इजाफ़ा होने लगा। Close to the mound on which La Latif came to live is a natural lake. His poetic nature loved the calm atmosphere. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. As he sat there, he prayed too. He prayed to God and sometimes composed verses in his praise. अच्छा जनाब, जहाँ पे वो माउंट पे रहते थे उसके पास ही एक कुदरती झील भी मौजूद थी और वो वहाँ के पुरसकून एटमॉस्फेयर में बहुत सुकून महसूस करते, वहाँ वो इबादत करते और कभी कभी अल्लाह ताला की शान में नज़में भी कंपोज़ किया करते। Shah Abdul Latif was not only a saint and a poet but also a musician. He found great comfort in music. His skills in this art enabled him to make many improvements and changes in the difficult music of his time. अच्छा जनाब, तो शाह लतीफ़ जो हैं वो अपने वक्त के न सिर्फ एक सूफ़ी शायर थे बल्कि एक म्यूज़िशन भी थे और उन्होंने उस वक्त के म्यूज़िक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की और उसको सिंपल बनाया। एज़ for everything else, he loved simplicity in music and musical instruments. He did not agree with the idea that music should be difficult. लिहाजा उन्होंने म्यूज़िक को भी सिंपल बनाया क्योंकि वो इस बात के कायल नहीं थे कि म्यूज़िक को मुश्किल होना चाहिए। So he made it simple. He also invented a simple musical instrument and called it tamburo. उन्होंने एक सिंपल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी एक इन्वेंट किया जिसको तंबूरो कहते हैं और इसमें सिंपली ये सिंगल स्ट्रिंग्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके ज़रिए उन्होंने म्यूज़िक को सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा जनाब, तो जो इंस्ट्रूमेंट तंबूरो, इट वाज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द Arabs, but the number of strings was different. To this day, the tamburo is popular all over Sindh. Old and young play it and sing the songs of Latif to its simple but moving tunes. और आज भी जो है ये तंबूरो जो है, तंबूरा जो है वो सिंध में उसी तरह से मकबूल है और बूढ़े और जवान सभी उसकी मुतरन्नम धुनों पे गाना और सुनना पसंद करते हैं। La Latif died in 1752 on the mound where he had lived and was buried there. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kalhoro, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. अच्छा जनाब, 1752 में इन सूफ़ी बुज़ुर्ग सूफ़ी शायर लाल लतीफ़ का इंतकाल हो गया और ये वहीं उसी माउंट पे इनको दफनाया गया और उस वक्त के मशहूर बादशाह ग़ुलाम शाह कलहूरो ने जो इनके इरादतमंदों में, इनके अक़ीदतमंदों में शामिल थे, उन्होंने इनकी क़ब्र पे एक अज़ीम शान मक़बरा भी तामीर करवा दिया। Latif's devotees collected his poetry and this collection came to be called the Risalo of Shah Abdul Latif. He was a poet of the people, so he wrote poetry in the language of common man. This collection of his poems is so valued that it has been translated into many languages. One great quality of Latif's poetry, besides its simplicity, is its moving music. When you listen to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. अच्छा जनाब, तो शाह अब्दुल लतीफ़ जो हैं उनकी पोइट्री को उनके इंतकाल के बाद उनके इरादतमंदों ने, उनके अक़ीदतमंदों ने कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में कंपोज़ किया जिसको शाह जो रिसालों का नाम दिया गया।
और ये जो इनकी पोइट्री की जो बुक है शाह जो रिसालो इनफैक्ट ये एक बुक है, इसको जो है वो मुख्तलिफ़ काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में इसका तर्जुमा भी किया जा चुका है। और इनकी म्यूज़िक में भी जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन्हें हर चीज़ में सादगी पसंद थी, सिंप्लिसिटी, जैसे कि इन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में भी सादगी क्रिएट की। इसी तरह से इनकी जो पोइट्री है उसमें भी सादगी है, साथ साथ इसका एक मूविंग म्यूज़िक है जो अट्रैक्ट करता है हर एक को। इवन कि अगर आपको कोई एक वर्ड भी ना समझ पाएँ, जब भी आप जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। Latif Source is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. Many thousands of people gather, listen to the saints' songs sung to the tamburo, and offer their prayers. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. Recently, a library, a rest house, and a museum have been built. The shrine itself has been rebuilt and connected with the main road. Its lovely white dome, representing the purity and dignity of Latif, can be seen from many kilometers. अच्छा जनाब, तो हर साल इस्लामी महीने दूसरे इस्लामी महीने की 14 तारीख़ यानी 14 सफ़र को इनके मज़ार पे इनके शानदार उर्स का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पे लर्नेड पीपल जमा होके इनके बारे में मकाले पढ़ते हैं और इनके जो है वो इनकी शायरी पढ़ी जाती है और शायरी गाई जाती है। और अब तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी, एक रेस्ट हाउस और एक म्यूज़ियम भी बना दिया गया है, और उनका जो मकबरा है वो भी रीबिल्ड किया गया है, जिसका सफ़ेद गुंबद दूर ही से नज़र आता है। Latif's message is a message of love. He believed in the brotherhood and equality of man and in pleasing God by good deeds. This, according to him, is the goal of life. तो शाह अब्दुल लतीफ़ का जो मैसेज था वो दरअसल मैसेज ऑफ लव था, और उनका मानना था कि भाईचारे और बराबरी ही से और अल्लाह के जो है और अच्छे कामों की मदद से ही हम अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। और उनके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद भी यही था कि हम अपने अच्छे आमाल से अल्लाह पाक को खुश करें। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार पे उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया हुआ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तंबूरो बजाया जा रहा है। आप सुन सकते हैं कि कितना मेलोडियस और पीसफुल हमें महसूस